یہ میں بھی نہیں جانتا۔ اب میں چلتا ہوں، ساگر سروپ نے کہا اور میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ ساگر سروپ مجھ سے کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ میں اب اس سے کیا کہتا؟ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس وقت جب تک چاندنی میں مدغم نہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ یقیناً آبادی سے بہت دور نکل آئے تھے۔ چاندنی کے سوا کہیں روشنی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ میں نے ایک جگہ منتخب کی اور بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر خود کو امتحان میں ڈالا تھا، مگر یہ انوکھا امتحان تھا، انوکھی کہانی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ساگر سروپ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایک دو بار یہ خیال بھی آیا کہ کہیں یہی بھوریا چرن کی کوئی چال نہ ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کیوں دل نفی میں جواب دے رہا تھا، جو کچھ بھی ہے یہ کھیل ضرور کھیلوں گا۔ ایک مناسب جگہ منتخب کر کے لیٹ گیا۔ دل میں بہت سے وسوسے تھے، اگر سو گیا تو سوتا نہ رہ جاؤں، جاگتا رہا تو صبح نیند سے نڈھال ہو جاؤں گا، پھر کیا کروں؟ بچپن کی ایک بات یاد آ گئی، ماں نے بتائی تھی۔ امتحان دے رہا تھا، رات کو دیر تک پڑھتا رہا۔ ماں نے کہا اتنی دیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور امتحان سال بھر پڑھو تو آخری دنوں میں یہ مشکل نہ اٹھانی پڑے۔ اب تو پڑھنا ہی ہوگا۔ صبح کا سہانا وقت اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک کام کیا کرو، رات کو جب سویا کرو تو اپنے ہمزاد کو ہدایت کر دیا کرو کہ وہ تمہیں اس وقت جگا دے، دیکھ لینا اس وقت جاگ جاؤ گے۔ ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ بس ہوتا ہے۔ ماں شاید خود بھی اس کی تشریح نہیں کر سکتی تھی۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا، مگر پھر تجربہ کر ہی ڈالا۔ میں نے اپنے ہمزاد کو حکم دیا کہ مجھے صبح 5 بجے اٹھا دینا، اور پہلے ہی دن اس وقت آنکھ کھل گئی جب گھنٹہ 5 بجے کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کے بعد بارہا یہ تجربہ کیا اور کامیاب رہا۔ بہت عرصے کے بعد ہمزاد کا خیال آیا تھا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ مجھے 4:30 بجے جگا دے، اور پھر کھردری زمین پر لیٹ کر نیند کی خوش آمدیں کرنے لگا۔ نیند چپکے سے آنکھوں میں آ بسی تھی۔ یقیناً وہ 4:30 بجے کا وقت ہی ہوگا جب جاگ گیا تھا۔ سوتے ہوئے کروٹ بھی نہ بدلی تھی، اتنی گہری نیند آئی تھی، مگر اس نیند نے تھکن اتار دی تھی۔ اٹھ گیا، آنکھیں مل کر صاف کی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ دل میں آج کے آنے والے وقت کا خیال آیا اور دل ہولنے لگا۔ میں یہ عمل کر سکوں گا یا نہیں؟ خود کو پرعزم کرنے لگا۔ اجالا آہستہ آہستہ اترنے لگا، ماحول روشن ہو گیا، اور میں اس کھلاڑی کی طرح تیار ہو گیا جو سٹارٹنگ پوائنٹ پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ ساگر سروپ نے سورج کی سمت بھی بتا دی تھی۔ میں نے اچھل اچھل کر پاؤں کھول اور ادھر ہی نظریں جما بھی دی۔ سورج کا یہ کھیل دیکھنا تو کجا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر کیا اہمیت تھی اس کھیل کی۔ سورج بلند ہوا، کرنوں کا سیلاب امڑ آیا، اور میری نظریں زمین کا طواف کرنے لگی۔ سرتاج کرن زمین کو چھوتی ہوئی آگے بڑھی۔ میں نے چھلانگ لگا دی۔ اس کا رخ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دانت بھنچ گئے، مٹھیاں بند ہو گئیں، اور میں دوڑنے لگا۔ تیز ہوا نے کان بند کر دیے، بدن کا رواں رواں دوڑ رہا تھا۔ اس وقت اسے انسانی قوت نہیں کہا جا سکتا، سوچنے سمجھنے کی قوتیں گم ہو گئی تھی، بس بصارت زندہ تھی، اور میں ہر کرن پر جیسے سواری کیے ہوئے تھا۔ شاید اس رفتار سے کسی انسان کو دوڑتے ہوئے کبھی نہ دیکھا گیا ہو، کیونکہ وہاں دیکھنے والا اس جگہ تھا بھی کون۔ کچھ لمحات کے بعد میں اپنی خام خیالی کا مجھے احساس ہوا۔ میں تنہا نہیں تھا، یقیناً میں تنہا نہیں تھا۔ بہت سے پرندے میرے سر پر سفر کر رہے تھے، بہت سے چوپائے بھاگ رہے تھے۔ یہ کائنات کی سب سے حیرت ناک دوڑ تھی جو ہر صبح ہوتی ہے، مگر انسانی آنکھ نہ اسے دیکھتی ہے نہ سمجھتی۔ پھیپڑے پھٹ گئے تھے، بدن سڑ گیا تھا، مگر ہمت ساتھ دے رہی تھی۔ اندازے ختم ہو گئے، یہ تصور بھی نہیں کر سکا تھا کہ کتنا فاصلہ طے ہوا۔ بس سرتاج کرن تھی اور میں، ساری کائنات دوڑ رہی تھی۔ پھر اچانک سرتاج کرن گم ہو گئی۔ دوسری کرنوں نے اسے آ لیا اور اسے گود میں اٹھا کر گم ہو گئی۔ دھوپ پھیل گئی، سامنے ہی ایک تیز رفتار ندی کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس کے قریب درخت اور گھاس نظر آ رہی تھی۔ سرتاج کرن کے گم ہوتے ہی میرے پیروں کی رفتار سست ہو گئی، اعصاب نے بریک لگائی، بدن کو کئی جھٹکے لگے اور میں چکرا کر گر پڑا۔ نیچے گھاس تھی، بدن کئی بار تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ یوں لگا جیسے بدن سے روح نکل گئی ہو اور میں بے جان سا ہو گیا۔ سکون، ایک لامتناہی سکون، خاموشی، سناٹا، اور یہ سناٹا بڑا فرحت بخش تھا۔ موت کتنی حسین ہے، شاید میں مر گیا، بس پھر میں مر گیا، مگر موت جیسی حسین شے اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے جگا دیا گیا، بتایا گیا کہ میں زندہ ہوں، زیر امتحان ہوں، اور امتحان اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ ایک ننھا سا خوش رنگ پرندہ میرے سر پر آ بیٹھا، آہستہ آہستہ میری پیشانی پر چونچے مار رہا تھا۔ میرے بدن کو جنبش ہوئی تو وہ پھر سے اڑ گیا۔
जिंदगी के एहसास ने पूरी तरह बेदार कर दिया। एक कराह के साथ उठकर बैठ गया। नदी का शोर मुसलसल उठ रहा था। सेबों की खुशबू फैली हुई थी। सख्त भूख लग रही थी। दरख्त नजर आए जिन पर सेब झूल रहे थे। आसानी से उठ गया, सेब तोड़े और उन्हें चबाए। खूब पेट भर गया। फिर नदी से पानी पिया। शाम झुक रही थी। कुछ देर के बाद तारीकी नीचे उतर आई। दिल में कोई ख्याल नहीं था। परिंदे नजर आ रहे थे। किसी इंसानी वजूद का निशान तक नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद खंकारने की आवाज़ उभरी और मैं सहम गया। आओ, किसी ने कहा और मैं आंखें फाड़ने लगा। रुकते क्यों हो, आगे बढ़ो, आवाज़ ने कहा। कौन है, कहाँ हो तुम? मैं डरी डरी आवाज़ में बोला, जुस्तजू, सिर्फ जुस्तजू, कदम आगे बढ़ाओ। लहजा करख्त था। मेरी समझ में नहीं आया कि किधर कदम बढ़ाऊं। बहरहाल चंद कदम आगे बढ़ा, रुक गया। बढ़ते रहो, रुकते क्यों हो, कहा गया। तब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे आगे आगे चल रहा है। मैंने कदमों की चाप से कदम मिला लिए और मुझे एक ऐसे खित्ते में लाया गया जहाँ दरख्त एक दायरे की शक्ल में थे। यहाँ इंतहाई दिल फरेब खुशबू फैली हुई थी। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एहसास होता था कि बहुत से लोग मौजूद हैं। ये है, किसी ने कहा। क्या नाम है? मसूद अहमद। क्या जुर्म है? गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा? एक आवाज़ उभरी। एतराज़ है क्या? वो मलून जानता था, समझता था, तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। ये फैसला रोज़े हश्र का है। इस फैसले का यहाँ जिक्र कहाँ? तो ये इज्तिमा यहाँ क्यों है? हमारा फ़र्ज़ है। कैसे? एक मुसलमान को मदद दरकार है अरवाह खबीसा के खिलाफ। मुसलमान रगों में दौड़ती गलाजत के बावजूद ये गलाजत इसे धोखे में मिली है। इसका अमल क्या रहा? चंद गलतियाँ। तवाज़ुन क्या है? कफ़ारे का पड़ा ज़मीन से लगा हुआ। मीज़ान दुरुस्त है, पूरी जांच पड़ताल के साथ। इसके साथ ताउन मशियत इज़्दी से इनहराफ का गुनाह तो ना होगा। काजी साहब फैसला करेंगे। मुख्तसर तफसील। नई आवाज़ ने कहा। इब्तदा। नौजवानी की सरकश उम्र रिज़्क़ हराम की तलब और इसकी जुस्तजू में एक सफले के पास पहुंचा, मगर फिर बेलौस खिदमत और एक मज़ार पाक को आलूदा ना करने का अज़्म, जिसके नतीजे में मुसीबतों के पहाड़ उठाए फिरा है ये। मगर इसे मौका मिला, वहाँ इससे गलती हुई। ये दूसरा गुनाह था। इसके बाद खबासत से मुसलसल जंग, उसकी क़ुव्वतों के हसूल के बावजूद उनसे मुसलसल इन्हिराफ, सऊबतों की मुसलसल बर्दाश्त। खबासत से मुसलसल जंग, उसकी क़ुव्वतों के हसूल के बावजूद उनसे मुसलसल इन्हिराफ, सऊबतों की मुसलसल बर्दाश्त, गैर दीनी उमूर को कबूल ना करना, भटकना मगर संभलना, कभी ज़ेर ना होना, आपके लिए कुछ हासिल ना करना। पलड़ा बहुत नीचे है, सज़ा मुकम्मल है। इसका फ़ैसला कैसे मुमकिन है? हाँ, सिफारिश की जाती है। इसकी एक अहम वजह है, बताई जाए। हर खौफ, हर मसलहत से बेनियाज होकर इसने खुद को मुसलमान कहलवाया है। कभी किसी मसलहत या जिंदगी के खौफ ने इसे अपना नाम बदलने पर मजबूर नहीं किया। कोई एहसास इससे इसका दीन नहीं छीन सका। आह, ये काबिल गौर है। फ़र्ज भी है, बातिल कुव्वतें इसे मुसलसल ज़ेर कर रही हैं, लेकिन यह साबित कदम रहा। इसकी मदद हम में से हर साहिबे दीन पर फ़र्ज हो गई। हमें इसके लिए दुआ करनी होगी कि बातिल कुव्वतें इससे दूर हो जाएं। अपनी बिसात के मुताबिक इसकी रहनुमाई हम पर वाजिब है। दुआ करो, हाथ उठाओ। और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरा बदन होले होले लरज़ रहा था, दिमाग साकिन था, सिर्फ सुन रहा था। मैं बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं सुन सका। फिर आमीन की गूंज सुनाई दी। फिर एक आवाज़ ने कहा, ऐ शख्स अमल अफजल है और सबको हिदायत की गई। बेअमल पत्थर होते हैं कि हिल नहीं सकते और हवा और पानी के मोहताज होते हैं। हर ज़ीरू को अमल दिया गया तो तू हमारी अदालत में आया और फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर तेरे हक़ में हुआ, लेकिन अमल सिर्फ तुझे ही करना होगा। इसके एवज़ विलायत ना मांगना, दरवेश ना समझ बैठना खुद को कि ये अमल सिर्फ तेरी ज़ात की फलाह के लिए है। इसका नतीजा तेरे लिए बेहतर होगा। 7 जादूगरनियाँ तुझ पर मुसल्लत कर दी गई हैं और 17 जादू तेरे वजूद में उतार दिए गए हैं। इनसे छुटकारा तेरी जिम्मेदारी होगी। तुझे इन 7 जादूगरनियों को हलाक करना होगा और सिर्फ इंसान रहकर, जब तक वो अमल करेंगी और तू उनका शिकार होगा, इंसानों की मानिद, लेकिन होश के लम्हात ना खोना। वहीं खुद को संभालना और हालात से फरार हासिल ना करना, बल्कि उनमें शामिल हो जाना।
तुझे उनकी सूरतें नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन एक रियायत होगी। उनके हाथों में 7 उंगलियां होंगी, बस यही उनकी पहचान है। और इस अमल के लिए जो मुश्किलात तुझे पेश आएंगी, उनसे तुझे मदद मिलेगी। इनका वादा है, और इस पर गौर ना करना, ना ही इसका ताक़ुब जो तेरा मददगार हो, ना ही इन्हें राफ करना उनसे जो तेरी कुर्बत के तालिब हों। और ये इस सफले का अमल होगा जो अब शुरू होगा, लेकिन वो तेरे तलिस्म से वाकिफ़ ना होगा कि इससे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ तेरे लिए मुमकिन नहीं। बस अब जा, रात गहरी हो गई है। मुकम्मल खामोशी हो गई। मैं मुसलसल लरज़ रहा था, दिमाग साईं साईं कर रहा था, आसाब चटक रहे थे। खामोशी से वहाँ से पलटा और वापस चल पड़ा। जिस सिमत से यहाँ तक आया था वो याद थी, वो सब कुछ जहन में गूंज रहा था, जहन उसे जज्ब कर रहा था। न जाने कब तक चलता रहा। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। थक कर ज़मीन पर बैठ गया, लेट गया और फिर सो गया। फिर किसी ने झिंझोड़ कर जगाया। हमसे नाराज़ हो गए मसूद मियाँ, झिंझोड़ने वाले ने कहा, और मैंने आंखें पटपटाते हुए उसे देखने की कोशिश की। ओम प्रकाश था। मैं उठकर बैठ गया। सर पर एक दरख्त की छाँव थी, दिन बिखरा हुआ था, आवाज़ें उभर रही थीं, यात्री आते जाते नजर आ रहे थे। वही जगह थी। कहाँ गायब हो गए थे? ओम प्रकाश ने फिर पूछा। बस यही था, डेरे का रुख भी ना किया, भूल गया था। डेरा ही भूल गए थे? हाँ, और हमें नहीं। ओम प्रकाश जी, आपको कैसे भूल सकता हूँ। आओ चलो, सब याद कर रहे हैं। मैं ओम प्रकाश के साथ चल पड़ा। कुछ देर के बाद डेरे पर पहुँच गया। अरे ये क्या हालत बना ली है तुमने। कपड़े चिकट हो गए, बालों में धूल अटकी हुई है। सतप्रकाश, इन्हें स्नान कराओ। ओम प्रकाश की धर्म पत्नी ने कहा। रहने दें चाची, ठीक हूँ। अरे वाह, कैसे ठीक हो? मैंने कपड़े मंगवाए हैं तुम्हारे लिए, जाओ सतप्रकाश के साथ चले जाओ। सतप्रकाश ने मेरे लिए लाए हुए कपड़े संभाले, पहले एक हजाम के पास ले गया, दाढ़ी बनवाई, बाल बनवाए, यहाँ सब कुछ था। एक तालाब में नहाया और फिर कपड़े पहने, बाल वगैरह संवार कर तैयार हो गया। सतप्रकाश मुझे देखकर मुस्कुराया। बड़े सुंदर लग रहे हो महाराज, मगर क्या करें, उम्र में हमारे जैसे हो, पर दोस्त पिताजी के हो, इसलिए बेतकल्लुफ़ी से बात भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। हम वापस आ गए। ओम प्रकाश जी ने भी मुझे पसंदीदगी की नज़रों से देखा था। बाकी दिन उनके साथ गुजरा। शाम को सब मंदिर चले गए, ओम प्रकाश जी नहीं गए थे। कहने लगे, तुम्हारी वजह से रुक गया हूँ मसूद जी, सोचा है कि तुमसे कुछ बातें करूँ। कहिए ओम प्रकाश जी। सोचता हूँ तुम्हें अपने साथ आने पर मजबूर करके मैंने गलती तो नहीं की। तुम मुसलमान हो और यहाँ मंदिर ही मंदिर फैले हुए हैं, और फिर तुम मुसलमान भी आम नहीं हो, ज्ञान ध्यान वाले हो, अपने धर्म के आलिम होगे। मुझसे ज़्यादा और कौन जानता है इस बारे में। पर मन की सच्ची बात बताऊं, ये सब कुछ मैंने जानकर नहीं किया। मैं मुस्कुराती नज़रों से ओम प्रकाश को देखने लगा। फिर मैंने कहा, आगे कहीं ओम प्रकाश जी, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ मैंने तुमसे मिलना चाहा था, मगर तुम कहीं और चले गए थे। बाद में नज़र आए तो बेख्तियार मेरा मन चाहा कि तुम्हें साथ ले चलूं, और मैं फ़ौरन ही बोल दिया आपको, मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ ओम प्रकाश जी, आप भी ये जान लें कि जो होता है उसकी डोर कहीं और से हिलती है। हम सब तो कठपुतलियाँ हैं जो इस डोर से बंधे नाचते हैं। जिसे जहाँ से जो मिलना होता है मिलता है। माधुलाल को दौलत की हवस की सज़ा मिलना थी, मिली। आपको यहाँ यात्रा करके सुकून मिला, और मुझे भी कुछ मिला ही होगा। तुम तो महान हो, संसार बासियों को ध्यान देने वाला, खुद बोझ उठाकर 4 रुपए कमाए, ये मामूली बात नहीं है। वो 2-4 रुपए कितने कीमती हैं, मुझसे पूछिए ओम प्रकाश जी। और फिर किस शक्ल में क्या मिल जाता है, ये हम छोटे दिमाग वाले क्या जाने। मैं ये पूछना चाहता था कि आप इन मंदिरों से उलझते तो नहीं हैं? नहीं ओम जी, ये कमज़ोर लोग अपने अकीदों से अपनी तस्कीन करते हैं, किसी को भला क्या एतराज़। वैसे आपका खूब साथ रहा, बड़ी मोहब्बत मिली आपसे, बहुत ख्याल रखा आपने मेरा। क्या अब आप मुझे इजाज़त देंगे? जाना चाहते हो? जाना तो होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? दिल कभी मिलने को चाहे तो कहाँ तलाश कर सकता हूँ? यही सबसे मुश्किल जवाब है। मैं जानता हूँ, ओम प्रकाश ने उदासी से कहा। फिर बोले, कब जाओगे? किसी भी दिन, किसी भी वक्त। सच कहता हूँ मसूद, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम महान हो, मगर मुझे तुम्हारी ज़ात से प्यार हो गया है। भगवान तुम्हें खुश रखे। ओम प्रकाश खामोश हो गए। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने आराम के लिए एक जगह तलाश कर ली और सोने लेट गया।
मगर सोना कहाँ। सोचिए, बहुत बड़ा सहारा मिला था, बहुत से ख्यालात दिल में आ रहे थे। मेहनत की कमाई के 4 लड्डुओं ने काया ही पलट कर रख दी थी। रास्ता एक हिंदू जोगी ने दिखाया था। कोई भी हो जो नेकी का सफ़र करता है उसे रोशनी ज़रूर मिलती है। मेरा इल्म तो सिफर था, मैं क्या जानूँ कहाँ क्या छुपा है। बहरहाल अब जो हिदायत मिली हैं उन्हें समझना है, उन पर अमल करना है। अब चूक नहीं होनी चाहिए वरना कुछ बाकी ना रहेगा। इन हिदायत को दिल से लगा लेना चाहिए क्योंकि अमल अफजल है। इस पर गौर ना करना और ना ही उसका ताक़ुब करना जो तेरा मददगार हो, जो तेरी कुर्बत के तालिब हों, उनसे इन्हिराफ ना करना। एक एक बात याद आने लगी। 7 जादूगरनियों को हलाक करना है, ये 7 पूर्णियों के अलावा और कौन हो सकता था। कोई तदबीर तो बने, कुछ हो, क्या होना चाहिए। मेहनत की कमाई, 4 लड्डू, इससे गुरेज करता रहा हूँ। कितना अरसा गुजर गया, किसी न किसी पर इन्हिसार करता रहा हूँ। पहले रिज़्क़ हलाल की तलाश अफजल है। खुद को इधर से उधर कटी पतंग की तरह दौड़ाते रहना तो नहीं है। ये अमल बेशक तवील होगा लेकिन करना है, मुझे ये अमल करना है। आगाज़ कहीं से हो जाए, मुलाजमत किसी मुनासिब जगह। इसका तस्करा ओम प्रकाश जी से भी हो सकता है मगर बात ना बन सकेगी। वो मुझे दूसरी निगाह से देखते हैं। कहीं दूर ये कोशिश करना होगी, यहीं बनारस ही में सही। क्या हर्ज है, ये तो मंदिरों की दुनिया है, यहाँ से आगे तो पूरा शहर फैला हुआ है। हाँ, ज़्यादा दूर जाना क्या मायने रखता है। इस आखिरी एहसास ने सुकून बख्शा था, फिर सो गया। सुबह बहुत जल्दी आंख खुल गई। सुबह बनारस निगाहों के सामने था। दिल को बहुत खुशगवार कैफियत का एहसास हुआ था। कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। मैं इस खुशगवार सुबह का लुत्फ लेता वहाँ से आगे बढ़ गया। आज से नई जिंदगी का आगाज़ करना चाहता था। इस शहर में तकदीर आजमाना चाहता था। हर तरह के लोग यहाँ नज़र आते थे। उस वक्त भी यात्री ज़िंदगी की मसरूफियात में लगे हुए थे। इंसानों की एक चौपाल के पास से गुजर रहा था कि एक निस्वानी चीख सुनाई दी। लोगों के साथ मैं भी चौंक पड़ा। एक लड़की दौड़ती हुई आ रही थी, रुख इसी तरफ था और उस वक्त मैं बुरी तरह बौखला गया जब वो मेरे करीब आकर मुझसे लिपट गई। उसके मुंह से निकल रहा था, रत्ना, रत्ना जी, रत्ना जी। कुछ और लोग भी मेरे पास आ गए। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक मुअम्मर खातून मेरे पास आ गई। उन्होंने भी मेरा बाजू पकड़ लिया और रोते हुए दिलदोज लहजे में बोली, हमें नहीं पहचानते रत्ना? जो कोई भी हो, हमारा साथ तो रहा है। इसे देखो, कौन है ये? देखो इसे, ये कौन है? मेरा दिमाग एकदम जाग उठा और मुंह से निकला, रमा रानी। जब भी मिलते हो मंदिरों के पास मिलते हो, देवता हो, कन्हैया हो, कौन हो, मगर तुम जीवन देते नहीं, लेते हो। इसे नहीं पहचाना तुमने? अब मैंने चौंक कर खुद से लिपटी नौजवान लड़की को देखा। कृष्णा थी, सुर्खों सफ़ेद शोखियों से भरपूर, मगर उस वक्त उजड़ी हुई थी। चेहरे पर वहशतें बिखरी हुई थी, दुबली पतली। हमारे नहीं हो, हकीम ही बन जाओ, मसीहाई कर दो हमारी, इसे मौत से बचा लो। रमा रानी की आवाज़ में सिसकियाँ भरी हुई थी। ये कृष्णा है ना? मैं रमा हूँ जिसे तुमने चंद रोज़ माँ कहा था और उसके सीने में तुम्हारा प्यार जाग उठा था। आप लोग यहाँ कहाँ? आप लोग यहाँ कहाँ? मैं रमा हूँ, कुछ वक्त दे दो हमें। भूल कर भी ना सोचा था कि तुम यहाँ मिल जाओगे, मगर मैं जानती थी, बार बार यहाँ आ जाती थी। उसका यकीन सच्चा था। इन्हें थोड़ा सा वक्त दे दो, इस प्यार की कीमत के तौर पर जो मैंने तुम्हें दिया था। मेरी मोहब्बत तुम पर उधार है रत्ना। रमा रानी सिसकने लगी। कैसी बात कर रही हैं रमा रानी? मैंने नमक खाया है आपका, मुझे बताइए क्या करूं? कोई और है तुम्हारे साथ? नहीं, कोई नहीं, मैंने बादल नख्वास्ता कहा। तो आओ, यहाँ से चलो, आओ, रमा रानी ने कहा और मैं हमकों की तरह कदम बढ़ाने लगा। कोई बात जो समझ में आ रही हो। मेरे पीछे 2 लड़कियां आ रही थीं, वो राधा और लक्ष्मी थी। कृष्णा मजबूती से मेरा हाथ पकड़े हुए थी और मेरी खोपड़ी हवा में मुअल्लक थी। ये भी एहसास था कि लोग मुझे देख रहे हैं। एक नौजवान लड़की मुझे इस तरह पकड़े हुए जैसे उसे मेरे भाग जाने का खतरा हो। कुछ दूर तो बौखलाहट के आलम में चलता रहा। फिर कुछ संभल कर मैंने कृष्णा से खुद को छुड़वाने की कोशिश की और कहा, कृष्णा खुद को संभालो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। देखो लोग कैसे हमें देख रहे हैं। चले जाओगे, भाग जाओगे, खो जाओगे, फिर नहीं मिलोगे। मुझे पता है, नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज़ में खौफ था, तशवीश थी, दहशत थी। मेरा दिल कटने लगा। वहाँ शक्तिपुर में भी मुझे इल्म हो गया था कि कृष्णा मुझे चाहती है, मगर कहानी ही अजीब थी।
मैं उस चाहत की पजीराई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दिमागी खराबी बताकर उन्होंने मुझे जो चाह समझ लिया या बता दिया, मगर आलमे होश में तो ये मुमकिन नहीं था। रमा रानी ने बड़ा प्यार दिया था, सब मोहब्बत करने वाले थे, मगर वो ऐसी जगह थी जहाँ कोई गैरतदार एक लम्हा भी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कृष्णा बहुत शौक, बहुत मासूम थी, आम लड़कियों से किसी तौर मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन थी तो तवाइफ ज़ादी। इन तमाम बातों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता तो भी मैं क्या करता, कोई अकल में आने वाली बात थी। तांगों के अड्डे पर आ गए, 2 तांगे किए गए और हम चल पड़े। तांगे में बैठकर मुझे इस अनोखी गिरफ्तारी पर हंसी आ गई। रमा रानी मेरे पास बैठी थी। अकेले आए हो बनारस? नहीं, कुछ लोगों के साथ, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे अपने हैं? रमा रानी ने सवाल किया। नहीं, मैंने गर्दन हिलाई। तुम्हारे अपने कहाँ हैं? पता नहीं, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। भटक ही रहे हो तो हमारे पास रहना क्या बुरा था? कोई तकलीफ थी वहाँ? नहीं रमा रानी, फिर क्यों चले आए? रमा रानी ने मुझे तीखी नज़रों से देखा। अपनों की तलाश थी, मैंने सादगी से जवाब दिया। नहीं मिले? नहीं, मैंने सिसकी लेकर जवाब दिया। हमें अपना समझ लो, कोई कमी नहीं पाओगे। अब तो शक्तिपुर भी छोड़ दिया हमने, यहीं बनारस में रहते हैं। कोई नहीं जानता कौन है, कहाँ से आए हैं। रमा रानी का लहजा उदास था। घर कहाँ है? मैंने पूछा। वो आ गया। रमा रानी ने तांगे वाले को इशारा किया। ईंटों का वसी और अरीज मकान नजर आ रहा था। उसके आसपास कोई और मकान नहीं था। हाँ, एक मैदान नजर आ रहा था और उसके दूसरे सिरे पर बाकायदा आबादी फैली हुई थी। सब तांगे से उतर गए। दोनों तांगे वाले पैसे लेकर चले गए। कृष्णा ने इसी तरह मुझे पकड़ा हुआ था। अंदर पहुंचकर रमा रानी ने उसे प्यार से पुकारा। कृष्णा, रत्ना मिल गया तेरा। ये फिर भाग जाएगा, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। नहीं री, ये अब कहीं नहीं भागेगा। चला गया तो? वो उसी तरह बोली। कहा ना नहीं जाएगा, मगर तुझे देखकर ये क्या सोच रहा होगा? क्या हुलिया बना लिया है तूने? सर मिट्टी से अटा हुआ है, चेहरे पर निशान पड़ गए हैं। चोटी गूंद, मुंह हाथ धो, कपड़े बदल। रत्ना, कपड़े निकाल, ये भी खुद को संवारे। कृष्णा के चेहरे पर तब्दीलियां नजर आईं। वो खज्जल सी महसूस हुई। फिर उसने शर्मिंदा से लहजे में कहा, मैं अभी आई, चले ना जाना। नहीं कृष्णा, मैं तो रमा रानी के पास ही बैठा हूँ। माँ, मैं अभी आई। वो मुड़ी और अंदर चली गई। रमा रानी ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। एक वसी कमरे में दाखिल हुई। यहाँ बैठ की कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। मुझे बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गई। तुम्हारा एक एक कपड़ा संभाल कर रखा है इसने। हफ्ते 15 दिन के बाद उसे निकालती है, धोती है, इस्त्री करती है और उसके बाद एहतियात से संदूक में रख देती है। कहती है रत्ना आएगा तो क्या पहनेगा। हम तो बर्बाद हो गए रत्ना, सब कुछ खत्म हो गया हमारा, सब कुछ। मैंने अब अपने आप को पूरी तरह संभाल लिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि रमा रानी जिस तबके से भी ताल्लुक़ रखती हूँ, उनका मज़हब कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने मुझे बेहद मुतासिर किया था। उनके अल्फाज में आज तक नहीं भूल सकता था। सारी सूरत हाल तो उस वक्त ही मेरी समझ में आ गई थी जब मैंने दीवानगी फरजानगी की तरफ कदम रखा था। रेल के हादसे ने दिमागी तवाजुन उलट दिया था और भटकता हुआ रमा रानी को मिल गया था। न जाने किस जज्बे के तहत होंठों से माँ का लफ्ज़ निकल गया था और रमा रानी ने अपना सीना मेरे लिए खोल दिया था। बहुत अच्छी खातून थी वो, मगर बदकिस्मती से तवाइफ थी। सारे वाक़ियात मुझे याद आ गए। अब क्या करूं? रमा रानी मेरे एहसासात से बेखबर अपनी कहानी सुना रही थी। कहने लगी, तुम्हारे आने के बाद तो यूं लगा जैसे हमारे घर पर झाड़ू फिर गई हो। कृष्णा तुम्हें याद कर करके कई रोज़ तक रोती रही। खाना पीना छोड़ दिया उसने। जिस तबीयत की मालिक थी उसका अंदाज़ा तो तुम्हें हो ही चुका था। कमरा बंद करके बैठ गई और जब कमरे से बाहर निकली तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। इसका कहना था कि शकुंता ने तुम्हें गुम कर दिया है। फिर एक दिन इसी दीवानगी के आलम में शकुंता के घर पहुंच गई। पीतल का गुलदान लेकर उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। जिस्म पर भी बहुत वार किए और शकुंता उन जख्मों की ताब ना लाकर मर गई। उसे अस्पताल दाखिल किया गया, मगर 3 दिन के बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। हम पर मुकदमा चला, इसे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। ये साबित करने के लिए ये दिमागी मरीज़ा है। सारा धन दौलत ख़त्म हो गया। बुरे हाल हो गए हमारे। उधर दुश्मनी अलग पड़ गई थी। दिमागी मरीज़ा की हैसियत से अदालत ने इसे बरी तो कर दिया, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था। किसी ने हमें हमारे घर में ना रहने दिया। हम वहाँ से चल पड़े। जो कुछ पैसे बचे थे उन्हें संभाल कर न जाने कहाँ कहाँ फिरते रहे, लेकिन दुश्मनों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने तो कह दिया था कि वो हमें किसी कोठे पर आबाद नहीं होने देंगे। तब मैंने सोचा कि जान है तो जहान है।
जो भाग में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। बनारस आ गए और यहाँ ये टूटा फूटा घर खरीद दिया, लेकिन वो तुम्हें तलाश करती रही, मंदिरों में, वीरानों में। अब यही कैफियत है, कभी कहीं से पकड़ कर लाते हैं इसे, कभी कहीं से पकड़ कर लाते हैं। मगर उसकी लगन सच्ची थी, उसके रास्ते पाक थे, उसने तुम्हें पा लिया। जो सुनेगा हैरान रह जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह हमें यहाँ मिल जाओगे। रमा रानी अपनी कहानी सुना रही थी और मैं दंग बैठा हुआ था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। मगर मैं उन्हें क्या जवाब दे सकता हूँ, उनकी मोहब्बत का? कृष्णा को क्या संभाल सकता हूँ? मैं तो खुद गमों का मारा था। कृष्णा थोड़ी देर के बाद दोनों हाथों में मेरे कपड़े लिए अंदर दाखिल हुई, बड़े प्यार से और एहतमाम से। उसने उन कपड़ों को इस्त्री करके अपने बाजुओं पर रखा हुआ था। कपड़े गरम गरम थे। उसने मेरे सामने रखते हुए कहा, जाओ रत्ना, नहा लो, कपड़े बदल लो। देखो तो सही कैसे मैले बाल हो रहे हैं। मैं इस्त्री कर रही थी इसलिए देर लग रही। तुम नहा लो, मैं भी अभी नहा कर आती हूँ। वो वापस चली गई। उसके अंदाज में वही मासूमियत, वही शोखी थी। रमा रानी कहने लगी, फैसला कुछ भी करो रत्ना, अभी इसका दिल रख लेना, कम अज कम उस वक्त तक जब तक इसका दिमाग ठीक ना हो जाए। मगर बुरा ना मानो तो ये बात कहूँ कि खुदगर्जी अच्छी चीज़ नहीं होती। हमसे मोहब्बत ना कर सको, लेकिन कम अज कम हमारा कर्ज ही चुका दो। मैंने रमा रानी को देखा और खामोशी से कपड़े उठाए और उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ मुझे नहाने जाना था। रास्ते में मालती मिली, मुस्कुराई और बोली, आ गए रत्ना जी, चलो तुम्हें नहाने की जगह बता दूं। सभी मौजूद थे। गुसल किया, लिबास पहना और इस दौरान न जाने क्या क्या सोचता रहा। वो सब कुछ करना है मुझे जो दिल में ठान ली है। ठीक है, रमा रानी अब कोठे पर नहीं है और ये जगह बेहतर है। जैसे भी गुजार रही हूँ वो जाने उनका काम, लेकिन मुझे यहाँ अब कोई ऐसा ठिकाना तलाश करना चाहिए जहाँ से रिस्क हलाल मिलने की उम्मीद बन जाए। रिहाइश के लिए अगर रमा रानी का घर हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक मामला कृष्णा का है तो बेशक रमा रानी का कर्ज है मुझ पर, उतारूंगा उसे। कृष्णा को बेहतर रास्ते पर लाऊंगा और किसी वक्त बता दूंगा कि मैं मुसलमान हूँ। ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। कृष्णा को मैं एहतराम का दर्जा तो दे सकता हूँ, लेकिन इससे आगे तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है और ना ही मैं इन रास्तों पर चलने के काबिल हूँ। ये फैसला कर लिया था दिल में और ये सोचा था कि अब साबित कदमी से यहाँ वक्त गुजारूंगा और अपने लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करूंगा। बस अब माजी की बहुत सी बातें दिल में रखने या दिमाग में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे अमल की दुनिया में आना था और यही मेरे हक में बेहतर था। चुनाचे रमा रानी, लक्ष्मी, राधा, मालती सभी से घुल मिल गया। कृष्णा के चेहरे पर जैसे एकदम नई जिंदगी फैल गई थी। लगता ही ना था कि कुछ वक्त पहले वो बदली हुई थी। गुसल खाने से निकली थी तो जैसे नया चेहरा चेहरे पर सजा कर निकली थी। रमा रानी ने उसे देखा और माँ की आंखों में आसूदा मुस्कुराहट खिलने लगी। मुझे इशारा करते हुए कहा, देखा तुमने? मैंने खामोशी से आंखें बंद करते हुए गर्दन हिला दी थी। मेरे लिए दर हकीकत बड़ा मुश्किल मरहला था। एक तरफ रमा रानी की मोहब्बत और उनके किए हुए एहसानात थे और दूसरी तरफ अपनी अनोखी जिंदगी। फैसला करना बड़ा मुश्किल काम था। सोच समझकर कदम उठाना था। रात को रमा रानी मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। कृष्णा मेरी यहाँ मौजूदगी से मुतमईन हो गई थी और बहुत खुश नज़र आ रही थी। राधा और लक्ष्मी की मुस्कुराहटें भी जूं की तूं थी। रमा रानी ने कहा, रत्ना, तुम्हें ये तो मालूम हो चुका होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, क्या वाक़या हुआ था तुम्हारे साथ जिसकी बिना पर तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन उलट गया था। रेल का हादसा हुआ था रमा जी। उस हादसे ने मुझे जाने किस किस से दूर कर दिया। नहीं, कुछ अजीज भी साथ थे क्या? तो उनका क्या हुआ? मर गए, मैंने ठंडी आह भर कर कहा। तो क्या अब तुम अकेले रह गए हो? एक तरह से यही समझ लें रमा जी। तो रत्ना हमारे साथ रहो, क्या हर्ज है? देखो बेटा, इंसान इंसान ही होता है। संसार में इसकी हैसियत कुछ भी हो, रोता हुआ आता है और हाथ पांव पिसारे चला जाता है, कुछ भी नाम दे लो, लेकिन होता तो वो इंसान ही है। हाँ रमा जी, इसमें कोई शक नहीं। मगर मैं मुसलमान हूँ। हैं? रमा रानी ने हैरान निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। रमा रानी अजीब से अंदाज में मुझे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि अपना धर्म बदल लो, मगर इंसानियत का तो एक धर्म होता है ना। थोड़ा सा समय हमारे साथ बिता लो, हमारी कृष्णा के साथ। कृष्णा को जैसे चाहे बहला लेना। और फिर रमा रानी की आंखों में आंसू टपकने लगे। मैंने बेकरार होकर कहा, नहीं रमा जी, आप फिक्र ना करें। कृष्णा जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत भी क्या है?
हमसे जो परहेज करना चाहो कर लेना, भाजी तरकारी तैयार होती है वो खा पी लेना, धरती पर जो कुछ होता है वो तो सबके लिए ही होता है। खा चुका हूँ रमा रानी जी, अब क्या परहेज करूँगा। लेकिन आपके हालात तो वैसे ही बिगड़े हुए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हैं, मुझे एक इजाज़त ज़रूर दे दीजिएगा। मैं कहीं नौकरी करूँगा, अपने लिए रिस्क कमाऊँगा, आपकी भी जो सेवा हो सकती है वो करूँगा, मुझे इससे आप नहीं रोकेंगी रमा जी। रमा रानी ने गर्दन झुका ली और कहने लगी, ठीक है, मगर कृष्णा को समझा लेना। हाँ क्यों नहीं, एक हद तक इत्मीनान हुआ था। ये भी बड़ी बात है कि सर छुपाने का ठिकाना भी मिल गया था। ओम प्रकाश जी से ये सब कुछ कहने के बारे में सोच रहा था। रिस्के हलाल का जो मज़ा चखा था उसे कभी नहीं भूल सकता था। लेकिन अब रास्ते और पुरखतर हो गए थे, एहतियात शदीद हो गई थी। कृष्णा की मोहब्बतें अरूज पर थीं। अब वो मुझसे बाकायदा समझदारी की बातें करने लगी थी। उसने एक दफ़ा पूछा, क्यों चले गए थे रत्ना? बस कृष्णा जी चाहा था। क्या शकुंता ने कहा था कि ये घर छोड़ दो? नहीं कृष्णा, शकुंता से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। सच? वो खुश होकर बोली। हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। और मुझसे? तुमसे तो बड़ा लगाव है मुझे कृष्णा, लेकिन तुमने जो अपनी हालत बना ली है मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी ही वजह से तो ऐसा हुआ। तुम चले गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे संसार में सूरज छुप गया, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ नज़र ही नहीं आता था, चारों तरफ घोर अंधेरा फैला हुआ था। अब खुद को संभालो, ये सारी बातें बुरी होती हैं। तुम अगर मेरे साथ रहो तो फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजार सकता कृष्णा, लेकिन देखो ना, मैं मर्द हूँ और मर्द घरों में चूड़ियाँ पहनकर तो नहीं बैठते। फिर क्या करते हैं? वो हंसकर बोली, वो बाहर निकलते हैं, औरतों के लिए रोज़ी कमाते हैं और फिर शाम को घर वापस आते हैं। और अगर कोई मर्द ऐसा नहीं करता तो वो मर्द मर्द नहीं कहलाता। तुमने कोठा छोड़ दिया, वो जगह बुरी, वहाँ मर्द मर्द नहीं होते थे, बल्कि जो मर्द कोठों पर रहते हैं औरतों के गुलाम होते थे। ये अच्छी बात है कि अब तुम यहाँ बनारस में हो। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं नौकरी करूँ और तुम सबके लिए रोज़ी कमाऊँ। कृष्णा कुछ सोचने लगी, फिर बोली, नौकरी करने के लिए तो तुम्हें शहर जाना पड़ेगा, और अगर फिर तुम वापस ना आए तो?